अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने मैनेजिंग सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के लेक्चर को के टॉपिक को स्टार्ट किया। तो आज since we could not complete the topic in the previous lecture due to shortage of the time, so today we are going to complete it till the end. So managing software project, we discussed about what is the project, what are the characteristics of the project, and then we started the topic of management spectrum. We discussed that there are four P's effective software project management should focus on. First one is the pupil, then the product, the process, and the project. We learned about the pupil in detail. What categories of pupil are involved in this management spectrum. First one was the stakeholders. We learned about the different type of stakeholders involved in a project of a software development. Then it was the team leaders. Every effective good team leader should have the characteristics of MOI model, motivation, organization, and ideas of innovation. Then we continued about the team leaders characteristics. Every team leader project effective project manager should emphasize on four key traits. First one was the problem solving, then the managerial identity, then the achievement and the influence, and team building. Then we learned about the software team, another part of the pupil. Four different paradigms of building a software team. It was a closed paradigm, random paradigm, open paradigm, which was the combination of closed and random paradigm, and a synchronous paradigm. Then we learned about the characteristics or principles of or features every software team must possess. Then we are going to continue our topic with this slide. This is the pupil last issue about the pupil, first P. It was the coordination and communication issues. Since there are the pupil or persons involved in this management spectrum, therefore, there must be some coordination and communication issues among them. और यही इशू अक्सर प्रोजेक्ट की के फेल्यूर को का रीजन बनता है अगर प्रॉपरली मैनेज ना किया जाए, कम्युनिकेशन प्रॉपरली ना हो, बात को सही से बताया और समझा ना जाए, पूछा ना जाए, सही से कोऑर्डिनेट ना किया जाए, एक दूसरे को साथ लेके ना चला जाए, तो इसकी वजह से भी अक्सर प्रोजेक्ट फेल हो जाते हैं। डील विथ देम इफेक्टिवली, कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन को इफेक्टिवली डील करने के लिए यू मस्ट एस्टेब्लिश इफेक्टिव मेथड्स फॉर कोऑर्डिनेटिंग द पीपल हु डू द वर्क। आपको इफेक्टिव मेथड्स यूज करने होंगे, यानी ईमेल सिस्टम, एक रोजाना की या 2 दिन के बाद या वीकली एक स्केड्यूल्ड मीटिंग हो सकती है, कोई भी तरीकाकार हो सकता है जिसके थ्रू लोग बैठे और एक दूसरे के साथ डिस्कशन करें। To accomplish this mechanism for formal and informal communication among team members and between multiple team must be established. तो इसे हासिल करने के लिए, अच्छी कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन को अटेन करने के लिए, अकम्प्लिश करने के लिए मैकेनिज्म बनाने चाहिए, फॉर्मल या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के टीम मेंबर्स के दरमियान। फॉर्मल तो भी आपको मैंने बताया, स्पेशल मीटिंग्स और ईमेल सिस्टम एक्सेट्रा। फिर फॉर्मल भी हो सकता है, गेट टुगेदर्स भी कर सकते हैं आप, ठीक है, मीटअप्स भी हो सकते हैं उनके, तो उनकी आपस में कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। फॉर्मल कम्युनिकेशन अकम्प्लिश्ड थ्रू राइटिंग स्ट्रक्चर मीटिंग्स ईटीसी। यानी फॉर्मल कम्युनिकेशन कैसे होगी, मैंने आपको बताया, राइटिंग्स, एक दूसरे से लिखत पढ़त रिटन में एक दूसरे को भेजने की थ्रू, ईमेल्स वगैरह के थ्रू, या स्ट्रक्चर मीटिंग्स के थ्रू, स्केड्यूल्ड मीटिंग मैंने आपको बताया। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन किस तरह से होती है, पर्सनल होती है। इसमें मेंबर्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ
आइडियाज शेयर करते हैं, एक दूसरे से मदद मांगते हैं। रोजाना की बुनियाद पर उनके आपस में गेट टुगेदर होगी, लंच पे, चाय पे। तो ऐसा भी उनको सेटअप किया जाए कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी उनके आपस में। Now, second P, moving towards the second P of the management spectrum. First one was the pupil, the second one is the product. A software project manager is confronted with a dilemma at the very beginning of the software project. सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की शुरुआत में ही जो हमारा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का मैनेजर होता है, उससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? वो होती है रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग। ऑब्वियसली सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हैं कस्टमर से। दीज में बी फ्लूइड, changing regularly as the project proceeds. यानी रिक्वायरमेंट्स अनक्लियर हो सकती है, चेंज हो सकती है बार बार जैसे प्रोजेक्ट चले। The scope of the product must be established and bounded. तो इसलिए प्रोडक्ट का जो स्कोप है, यानी उसमें कौन कौन से फीचर होने चाहिए, ये हम एक जगह पर बाउंड कर देते हैं। देखिए रिक्वायरमेंट्स बढ़ेंगी, टाइमलाइन बढ़ेगी, बजट बढ़ेगा। कस्टमर ने तो हमारे साथ डील कर ली, एग्रीमेंट कर लिया है फिक्स पेमेंट का, टाइमलाइन का। तो हमें कहीं ना कहीं एक स्कोप सॉफ्टवेयर का डिफाइन कर लेना चाहिए कि कस्टमर रिक्वायरमेंट बताता जाए, ऐसा नहीं कि हमारा स्कोप बढ़ता जाए, सॉफ्टवेयर में फीचर्स बढ़ते जाएं और हमें पता भी ना चले, हम उसकी डेडलाइन से बाहर निकल जाए। कितना कॉम्प्लेक्स हो जाए स्कोप, कितना लार्ज हो जाए स्कोप। तो स्कोप को बाउंड करना जरूरी है। सॉफ्टवेयर स्कोप डिफाइंड बाय आंसरिंग द फॉलोइंग क्वेश्चन। किस तरह बाउंड किया जा सकता है? इन क्वेश्चंस का जवाब दीजिए। फर्स्ट वन इज द कॉन्टेक्स्ट। क्या कॉन्टेक्स्ट होगा? हाउ डज द सॉफ्टवेयर टू बी बिल्ड फिट इनटू अ लार्जर सिस्टम, प्रोडक्ट और बिजनेस कॉन्टेक्स्ट, एंड व्हाट कंस्ट्रेंट्स आर इम्पोज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। जिस ऑर्गेनाइजेशन में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना है बनाया हुआ, वो कैसे उस ऑर्गेनाइजेशन में फिट होगा या उस बिजनेस में कैसे अकोमोडेट किया जाएगा, और कौन कौन सी रुकावटें, प्रॉब्लम्स इसके नतीजे में सामने आ सकती हैं। इन चीजों को एड्रेस करते हुए हम सॉफ्टवेयर का स्कोप डिटरमाइन कर देंगे ताकि ये जो प्रॉब्लम्स है ये उसके अंदर फिट हो जाए। इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्टिव्स, what customer visible data objects are produced as output from the software। यानी कस्टमर को कौन कौन से इंफॉर्मेशन आउटपुट के तौर पर प्रोडक्ट में मिलनी चाहिए, नजर आनी चाहिए, और बैकग्राउंड में जो चीजें वो नजर नहीं आती। और डेटा ऑब्जेक्ट्स आर रिक्वायर्ड फॉर इनपुट, और इनपुट के लिए क्या क्या मांगे सॉफ्टवेयर आपसे। डेट मांगेगा ट्रांजेक्शन की, कस्टमर नेम मांगेगा, अमाउंट मांगेगा, एक्सेट्रा, ये सब इनपुट है। क्या क्या वो मांगेगा, वो क्या क्या आपको रिजल्ट में, रिपोर्ट में आपको वो देगा। एवरेज दे देगा बिजनेस की, मंथली दे देगा, कस्टमर का नाम बता देगा, डेट्स बता देगा, ऐसे। जब हमने ये तय कर लिया तो इससे भी हमारा स्कोप फाइनलाइज हो जाएगा, बाउंड हो जाएगा। फंक्शन एंड परफॉर्मेंस, व्हाट फंक्शन डज द सॉफ्टवेयर परफॉर्म टू ट्रांसफर इनपुट डेटा इनटू आउटपुट। जो इनपुट डेटा हम देंगे, इनपुट करेंगे तो रिपोर्ट जनरेट करने के लिए, आउटपुट जनरेट करने के लिए, तो कौन कौन से फंक्शन सॉफ्टवेयर परफॉर्म करेगा बैकग्राउंड में, ये हमने अपना स्कोप तय कर लिया है। सॉफ्टवेयर स्कोप मस्ट बी अनएम्बिगुअस एंड अंडरस्टैंडेबल एट द मैनेजमेंट एंड टेक्निकल लेवल्स। यानी जो स्कोप हमने तय कर लिया कि क्या क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए, क्या क्या इनपुट होगा, क्या क्या आउटपुट होगा, जब हमने बाउंड कर दिया स्कोप को सॉफ्टवेयर के, ताकि जितनी भी अब रिक्वायरमेंट चेंज हो उससे बाहर ना निकल पाए, हमने एक डेडलाइन तय कर ली, तो वो फिर इतने क्लियर होना चाहिए स्कोप कि हमारे जो मैनेजमेंट और टेक्निकल लेवल के लोग हैं उन्हें समझ में आना चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर स्कोप मस्ट बी बाउंडेड। जो रिटन में हमारा सॉफ्टवेयर स्कोप लिखा जाएगा फाइनलाइज करने के बाद, उसको भी क्लोज कर दिया जाए, उसमें भी फिर चेंजेस ना की जाए। क्वांटिटेटिव डेटा, नंबर ऑफ साइमल्टेनियस यूजर्स कितने होने चाहिए, यानी एक ही वक्त में इस सॉफ्टवेयर को कितने यूजर्स बैक वक्त में चलाएं। टारगेट एनवायरनमेंट क्या होगा, मैक्सिमम अलाउएबल रिस्पांस टाइम कितना होगा, यानी कितने टाइम में आपको रिपोर्ट प्रोड्यूस करके
दे दी जाए, आर स्टेटेड एक्सप्लिसिटली, ये क्लियरली डिफाइन कर दिया जाए। सॉफ्टवेयर स्कोप की बात हो रही है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दिया जाए, एंड कंस्ट्रेंट्स और लिमिटेशंस भी बता दी जाए, यानी प्रोडक्ट कॉस्ट रिस्ट्रिक्ट्स मेमोरी साइज, यानी प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है उसकी मेमोरी साइज को रिस्ट्रिक्ट करेगी, आर नोटेड, ये नोट कर ली जाए। एंड मिटिगेटिंग फैक्टर्स जिन्हें कंट्रोल किया जा सकता है, फैक्टर्स को डिजायर्ड एल्गोरिथम आर वेल अंडरस्टूड एंड अवेलेबल आर डिस्क्राइब, सारे एल्गोरिथम अच्छे से डिस्क्राइब कर दीजिए। इस तरह से सॉफ्टवेयर स्कोप को जब क्लियर कर दिया जाए तो रिक्वायरमेंट जो भी आएंगी इनिशियली चेंजिंग के लिए, एडिशन या मॉडिफिकेशन के लिए, या न्यू रिक्वायरमेंट आएंगी, तो वो स्कोप से बाहर नहीं निकलेंगी और हमारा बजट टाइमलाइन मीट करेगा हमेशा, हम उससे बाहर नहीं जाएंगे। Then, second part of the product is the problem decomposition, an activity that sits at the core of software requirement analysis. जब हमने रिक्वायरमेंट गैदर कर ली और प्रॉब्लम सुन ली, जिसकी वजह से कस्टमर ने हमें कहा है कि उसे सॉफ्टवेयर चाहिए, अब हम एनालाइज करेंगे सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स। ड्यूरिंग द स्कोपिंग एक्टिविटी नो अटेम्प्ट इज मेड टू फुली डिकम्पोज द प्रॉब्लम। स्कोपिंग में हम पूरी तरह, जो पिछली हमारी एक्टिविटी थी प्रोडक्ट की, उसको पूरी तरह प्रॉब्लम को नहीं देखते, हम देखते हैं कि हमने क्या क्या करना है, स्कोप कितना होना चाहिए सॉफ्टवेयर का। उसकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ी होगी तो हमारा तो स्कोप से बाहर भी जा सकते हैं, हमें एक स्कोप तय करते हैं। तो यहाँ पर हम प्रॉब्लम को डिकम्पोज करते हैं, उसे और अच्छे से समझते हैं। कैसे? टू मेजर एरियाज is applied to two major areas, the functionality and contents that must be delivered, यानी कौन कौन से फंक्शन लाजमी है कि सॉफ्टवेयर में मौजूद हो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ये प्रोसेस दैट विल बी यूज टू डिलीवर इट, और किस तरह से हम वो फीचर्स अवेलेबल करेंगे, कौन सा प्रोसेस एडॉप्ट करेंगे। दिस इज स्ट्रेटेजी दैट अप्लाइज एट प्रोजेक्ट प्लानिंग फेज, ये प्लानिंग के फेज में हम डिटरमाइन कर देते हैं, ठीक है, एनालिसिस करके प्रॉब्लम को प्लानिंग में तय कर देते हैं कि कौन कौन से फंक्शंस या कंटेंट्स ऐसे हैं जो लाजमी दिए जाएंगे कस्टमर को प्रॉब्लम डिकम्पोजिशन में। फिर सॉफ्टवेयर फंक्शंस described in the statement of scope are evaluated and defined to provide more detailed perhaps for beginning of estimation. तो सॉफ्टवेयर फंक्शन जो हमने स्कोप में तय किए थे कि हम देंगे कस्टमर को, उन्हें इवेल्युएट किया जाता है इस पोर्शन में, और रिफाइन किया जाता है कि क्या हम मजीद इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं डिटेल्स में जो हमने स्कोप में तय की। Then third P is the process. The team must decide which process model is most appropriate. यानी हम प्रोसेस मॉडल को डिसाइड करते हैं कि कौन सा सूटेबल है हमारे लिए फॉर कस्टमर्स, इसके लिए, और कस्टमर्स हु हैव रिक्वेस्टेड अ प्रोडक्ट एंड द पीपल हु विल डू द वर्क, कस्टमर के लिए कौन सा प्रोसेस मॉडल सूटेबल है। फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रोजेक्ट इटसेल्फ, जो प्रोडक्ट हम बनाने जा रहे हैं उसके लिए कौन सा प्रोसेस सूटेबल है। प्रोसेस मॉडल में आपको पढ़ा चुका, वाटरफॉल एंड इटरेटिव वगैरह, स्पाइरल। फिर प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट इन विच सॉफ्टवेयर टीम वर्क, और जो हमारे पास इन्वायरमेंट अवेलेबल है उस इन्वायरमेंट के तनाजुर में कौन सा प्रोसेस मॉडल सूटेबल है, यानी इसमें हम हमारी टीम तय करेगी कि कौन सा प्रोसेस मॉडल सेलेक्ट किया जाए प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट के लिए। सिलेक्शन किन बेसिस पर होगी, कस्टमर को देखा जाएगा कि उन्हें कैसी प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट में होना क्या क्या चाहिए ये देखा जाएगा, और प्रोडक्ट बनाने का हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट कैसा है, क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हो सकती है, कैसी स्किल्स हमारे लोगों के पास अवेलेबल है, पेशेंस लेवल है कि नहीं, मैनेजमेंट की इंकरेजमेंट और सपोर्ट कितनी है, रिवॉर्ड सिस्टम है कि नहीं, एक्सेट्रा। फिर प्रोसेस में मैंने प्रोसेस मॉडल हैज बीन सिलेक्टेड, हमने इन तीनों पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए
कोई एक प्रोसेस मॉड्यूल सेलेक्ट कर लिया जो हमें लगा कि मोस्ट अप्रोप्रिएट, द टीम then defines a preliminary project build plan based on the set of process framework activities. उसके बाद जो टीम हमने बनाई है वो डिफाइन करेगी प्रोजेक्ट के प्लान को, ठीक है, प्रोजेक्ट के प्लान को डिफाइन करेगी बेस्ड ऑन दी सेट ऑफ प्रोसेस फ्रेमवर्क एक्टिविटीज। जो फ्रेमवर्क एक्टिविटीज हैं जो मैं आपको पहले से बताता हुआ आ रहा हूँ, उनकी बेस पर पूरा एक प्लान बनाएगी, उस मॉडल को फॉलो करती है, ठीक है। आफ्टर एस्टेब्लिशिंग द प्रिलिमिनरी प्लान, प्लान बना लिया, इनिशियल प्रोसेस डिकम्पोजिशन बिगिंस, प्रोसेस की डिकम्पोजिशन होगी, रिक्वायरमेंट्स क्या थी, एनालाइज किया जाएगा प्रोसेस को, एक्सेट्रा। अ कंप्लीट प्लान reflecting the work tasks required to populate the framework tree must be created. उसके बाद फिर एक कंप्लीट प्लान बनाया जाएगा जिसमें एक एक काम जो करना है वो सारा उसमें नोट डाउन किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा, लिखा जाएगा, और फिर वो पॉपुलेट किया जाएगा, टीम मेंबर्स को दे दिया जाएगा, और रिलेवेंट स्टेक होल्डर्स जिन्हें वो दिया जाना है पूरा प्लान, वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा कि हम इसमें कौन कौन सी टास्क परफॉर्म करने जा रहे हैं, तो कौन कौन ये टास्क परफॉर्म करेगा, ठीक है। उसके बाद we move towards the next part of the product process, that is the melding the product and process। यानी प्रोडक्ट जो हमने बनानी है और कौन सा प्रोसेस हम मॉडल अडॉप्ट करने जा रहे हैं, इसे आपस में कनेक्ट कैसे किया जाए, ज्वाइन कैसे किया जाए। प्रोजेक्ट प्लानिंग बिगिंस with the melding and joining of the product and the process। प्रोडक्ट बनती जाती है, प्रोसेस उसमें चलता जाता है, तो दोनों आपस में मिलकर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ईच फंक्शन टू बी इंजीनियर्ड बाय योर टीम मस्ट पास थ्रू द सेट ऑफ फ्रेमवर्क एक्टिविटीज। यानी जो फ्रेमवर्क एक्टिविटीज है जो थ्रूआउट हम पढ़ते आ रहे हैं, 5 जो मैंने बताई थी, स्टार्टिंग फ्रॉम द कम्युनिकेशन टू द डिप्लॉयमेंट, इन सब में से each function to be engineered, इन सब एक्टिविटीज में से हर फंक्शन होकर गुजरेगा। फॉर एग्जाम्पल स्पेसिफिक हो जाते हैं समझने के लिए, हमें एक प्रोजेक्ट दिया गया वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर बनाने का। वर्ड प्रोसेसर यानी जिसके एग्जाम्पल है MS वर्ड, इसमें वर्ड्स लिखते हैं, उसकी प्रोसेसिंग करते हैं। तो हम इस तरह से इनका आपस में लिंक अप करेंगे, इस तरह से इन्हें आपस में मेल्ट करेंगे। ये है हमारे पास ऊपर 5 फ्रेमवर्क एक्टिविटीज जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन एंड डिप्लॉयमेंट। ये हमारी जनरल फ्रेमवर्क एक्टिविटीज है जो ऑल प्रोसेस मॉडल्स में अप्लाई होती है, और ये हमारे डिफरेंट फीचर्स हैं, टास्क हैं जो उसमें वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर बनाने में हमने यूज करनी है। फॉर एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टास्क, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की टास्क को, ये हमारी सारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टास्क है, ठीक है। ये नीचे जो है, पहला क्या है, प्रोडक्ट फंक्शन, हम प्रोडक्ट के फंक्शंस बनाएंगे, इस ऑल इस पर ये पांचों फ्रेमवर्क एक्टिविटीज अप्लाई होंगी प्रोडक्ट फंक्शन पे। इसके लिए कम्युनिकेशन भी होगी, इसके लिए प्लानिंग भी होगी, इसके लिए मॉडल भी बनेगा, इस प्रोडक्ट फंक्शन के लिए जो हमारा कंस्ट्रक्शन भी होगी, डिप्लॉयमेंट भी होगा। टेक्स्ट इनपुट, किस तरह से हम इनपुट देंगे टेक्स्ट को, टेक्स्ट इनपुट किस तरह से होगा, उसके लिए भी सारे ये हमारे अप्लाई होंगे। एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग किस तरह की होगी, वर्ड प्रोसेसर में ये पांचों एक्टिविटीज उस पर अप्लाई होंगी। ऑटोमेटिक कॉपी एडिट, पेज लेआउट कैपेबिलिटी, ऑटोमेटिक इंडेक्सिंग एंड TOC, फाइल मैनेजमेंट कैसे होगी, डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन कैसे होगी, ये सारी जो भी फंक्शन है हमारे, जो हम वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर बनाते वक्त डिजाइन करेंगे, उन सारे फंक्शंस पर ये पांचों हमारी फ्रेमवर्क एक्टिविटीज अप्लाई होंगी।
ठीक है, पांचों फ्रेमवर्क एक्टिविटीज से होकर गुजरेंगे सारे फंक्शन। यानी एग्जांपल को और अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है वर्ड प्रोसेसर डेवलपमेंट। The team member who work on a product function will apply each of the framework activities on it। मैं आपको एक्सप्लेन किया हर फंक्शन जिसको कोई भी टीम मेंबर परफॉर्म करे, जैसे कोई टीम मेंबर टेक्स्ट इनपुट पर या स्पेलिंग चेक पर काम कर रहा है, वो पांचों फंक्शंस को, पांचों फ्रेमवर्क एक्टिविटीज को उस फंक्शन पे अप्लाई करेगा। In essence, a matrix similar to the one shown in figure created। इसी तरह वो जो पिछला मैंने आपको डायग्राम दिखाई, ये मैट्रिक्स क्रिएट किया जाएगा कि कौन कौन से फ्रेमवर्क एक्टिविटीज पर अप्लाई हो चुकी। Each major product function is listed in the left hand column। मैंने आपको दिखाया कि जितने भी हमारे मेजर फंक्शन है ये सारे लेफ्ट हैंड कॉलम में डिजाइन लिस्ट डाउन कर दिए जाएंगे। फ्रेमवर्क एक्टिविटीज आर लिस्टेड ऑन द टॉप ऑफ द रो। ऊपर फ्रेमवर्क एक्टिविटीज है हमारे पास इस मैट्रिक्स में। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वर्क टास्क फॉर ईच फ्रेमवर्क वुड बी एंटर्ड इन द फॉलोइंग रो। ठीक है, द जॉब ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजर एंड अदर टीम मेंबर्स टू एस्टिमेट रिसोर्स रिक्वायरमेंट फॉर ईच मैट्रिक्स। हर फंक्शन को हर एक्टिविटी के थ्रू गुजारने के लिए हमें कितनी कितनी रिसोर्सेज चाहिए होंगी वो लिखा जाएगा। स्टार्ट एंड एंड डेट्स फॉर द टास्क, यानी हर टास्क की जो स्टार्ट और एंडिंग डेट है उस पर्टिकुलर एक्टिविटी की वो लिखी जाएगी उसके सामने। एंड वर्क प्रोडक्ट टू बी प्रोड्यूस्ड एज अ कंसिक्वेंस ऑफ द ईच टास्क। और हर टास्क जब कंप्लीट होगी पांच एक्टिविटी से तो जो वर्क प्रोडक्ट बन के हमारे सामने आएगी उसका भी टाइम उसके सामने लिख दिया जाएगा। ये मैट्रिक्स बनेगा हर फंक्शन का। एक्टिविटीज हर फंक्शन पर ऑल 5 एक्टिविटीज अप्लाई होंगी। हर एक्टिविटी फ्रेमवर्क की कितना टाइम लेगी, इस फंक्शन पर कब कब कंप्लीट होगी, एक्सेट्रा। देन बिगिंस द प्रोसेस डिकम्पोजिशन। इसमें क्या होता है, a software team should have a significant degree of flexibility in choosing the software process model। यानी हमने रिजिड नहीं होना कि हमने कौन सा सॉफ्टवेयर मॉडल चूज करना है। बेहतर से बेहतर सेलेक्ट किया जाता है अपने प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट और अपने एनवायरनमेंट वगैरह के बेसिस पर, किसी एक पर टिक नहीं जाते। That is the best for the project and the software engineering task that populate the product process model once it is chosen। तो फिर जब सेलेक्ट कर लिया जाएगा, बेस्ट चूज कर लिया जाएगा प्रोसेस मॉडल, तो फिर अपनी टीम मेंबर्स को वो बता दिया जाएगा। A relatively small project that is similar to past effort might be best accomplished using the linear sequential approach। अभी हम रिवाइज हो रहा है हमारा, फ्लैशबैक कर रहे हैं जब हम मॉडल्स पढ़े थे उसे, कि छोटा प्रोजेक्ट हो जिसमें मिलता जुलता काम हो जो हमने पहले भी किया, उसके लिए बेहतरीन है कि लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल ही यूज किया जाए। ठीक है, यानी वाटरफॉल मॉडल की एक एग्जांपल है, क्योंकि स्मॉल प्रोजेक्ट है उसमें हमने पता है रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, बार बार चेंज नहीं होंगी। इफ द डेडलाइन इज सो टाइट दैट फुल फंक्शनलिटी कैन नॉट रीजनेबली बी डिलीवर्ड। अगर डेडलाइन बहुत टाइट है, हमें लग रहा है कि हम ऑन टाइम काम पूरा नहीं कर सकेंगे, तो इंक्रीमेंटल स्ट्रेटेजी माइट बी बेस्ट। तो जो इंक्रीमेंटल हमने पढ़ा था मॉडल, वो स्ट्रेटेजी यानी एक काम किया उसे टेस्ट किया, दूसरा काम किया उसे आगे वर्जन 1 वर्जन 2 वर्जन 3 वाला मॉडल। ठीक है, पहला वर्जन बना लिया, कस्टमर को दे दिया, उसने चेक किया, फिर उसने प्रॉब्लम बताई, उसे सेकंड वर्जन में अपडेट करके उसे दिया, थर्ड वर्जन में अपडेट करके दिया, ताकि कस्टमर को पता चलता रहे कि काम हो रहा है और डेडलाइन जो है वो हम मीट कर सकें आसानी से। सिमिलरली प्रोजेक्ट्स विद अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी ऐसे प्रोजेक्ट जिनमें हमें रिक्वायरमेंट्स का कुछ पता ना हो, आखिर हद तक चेंज हो सके, मॉडिफाई हो सके। ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए, हम जिस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं हमें ही पता कुछ अर्से में ये टेक्नोलॉजी नहीं आ जाए, हमारी आउटडेटेड हो जाए, पुरानी हो जाए। डिफिकल्ट कस्टमर ऐसे हों जिन्हें डील करना मुश्किल हो। सिग्निफिकेंट रीयूज पोटेंशियल, ये सब चीजें जब हों विल लीड टू द सिलेक्शन ऑफ अदर प्रोसेस मॉडल। तो फिर हम
इंक्रीमेंटल या वाटरफॉल मॉडल चूज नहीं करते, कोई और मॉडल चूज करते। वंस द प्रोसेस मॉडल हैज बीन चूजन, द प्रोसेस फ्रेमवर्क इज एडॉप्टेड टू इट। प्रोसेस मॉडल चूज कर लिया तो जो फ्रेमवर्क एक्टिविटीज हैं, जो तरीकाकार है उस मॉडल का, उसके तहत फिर हम प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। फिर प्रोसेस decomposition continue. The process framework is unchanging and serve as the basis for all work performed by the software organization. तो फ्रेमवर्क हमारा 5 एक्टिविटीज का ये कंसिस्टेंट रहेगा। जो भी मॉडल चूज करेंगे ये पांचों एक्टिविटीज सेम रहेंगी, सब पर अप्लाई होंगी टास्क पर। बट एक्चुअल वर्क टास्क डू वेरी, टास्क चेंज हो सकते हैं, लेकिन ये फ्रेमवर्क एक्टिविटीज जो 5 हैं जेनरिक, वो चेंज नहीं होंगी। फॉर एग्जाम्पल, small, relatively simple project might require the following work tasks for the communication activity. Develop list of clarification issues. यानी फॉर एग्जाम्पल एक छोटा प्रोजेक्ट है, उसकी कम्युनिकेशन की जो एक्टिविटी है, फ्रेमवर्क एक्टिविटी, उसके लिए हमें क्या क्या करना हो सकता है छोटे प्रोजेक्ट के लिए। डेवलप लिस्ट ऑफ क्लेरिफिकेशन इश्यूज, जो इश्यूज ऐसे हैं जिन्हें क्लेरिफाई किया जाना है कस्टमर और डेवलपर के दरमियान, वो लिस्ट बना लें जो हमने पूछने हैं कस्टमर से सवाल। मीट विद स्टेक होल्डर टू एड्रेस क्लेरिफिकेशन इश्यूज, उसके बाद फिर उनसे मिलना है, वो जो लिस्ट बनाई हमने क्लेरिफिकेशन इश्यूज की, उसे समझने के लिए, उसका जवाब लेने के लिए। जॉइंटली डेवलप स्टेटमेंट ऑफ स्कोप, फिर मिलकर एक स्टेटमेंट बना ली जाए स्कोप की कि अब सॉल्यूशन के मुताबिक इसमें क्या क्या काम होना चाहिए। रिव्यू द स्टेटमेंट ऑफ स्कोप विद ऑल कंसर्न, तो बना लिया फिर उसे रिव्यू किया जाए कि अब कोई मजीद गुंजाइश तो नहीं है इसमें चेंज की, और कोई क्लेरिफिकेशन इशू तो नहीं गया। फिर मॉडिफाई द स्टेटमेंट ऑफ स्कोप एज रिक्वायर्ड, अगर रह गया है तो फिर उसे मॉडिफाई किया जाए और वैलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ स्कोप बनाई जाए। एक्टिविटीज डिफरेंट हो सकती हैं। छोटा प्रोजेक्ट है, 5 एक्टिविटीज है मुख्तसर सी, लेकिन फ्रेमवर्क एक्टिविटी, ये टास्क डिफरेंट है, 5 टास्क डिफरेंट है, लेकिन फ्रेमवर्क एक्टिविटी वही है कम्युनिकेशन। बड़े प्रोजेक्ट में इससे ज्यादा एक्टिविटीज हो सकती हैं, डिफरेंट नेचर की हो सकती हैं, लेकिन कम्युनिकेशन होगी। ये फ्रेमवर्क एक्टिविटी लाजमी अप्लाई होगी, चाहे छोटा प्रोजेक्ट है या बड़ा प्रोजेक्ट। फिर हमने स्मॉल प्रोजेक्ट की एग्जांपल ली। फिर अगर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट हो, उसमें कम्युनिकेशन में हमें क्या क्या करना पड़ सकता है। सेम एक्टिविटी है फ्रेमवर्क एक्टिविटी, स्मॉल प्रोजेक्ट पे भी अप्लाई हो रही है, थोड़ी सी एक्टिविटीज के साथ, थोड़ी सी टास्क के साथ, 5 टास्क के साथ। तो कॉम्प्लेक्स पर भी अप्लाई हो रही है कम्युनिकेशन। इसमें क्या क्या हो सकता है। रिव्यू द कस्टमर रिक्वेस्ट, पहले हम कस्टमर की जो रिक्वेस्ट आई है उसे रिव्यू करेंगे, देखेंगे इसमें कोई सवाल तो नहीं आ रहे हमारे पास। प्लान स्केड्यूल ऑफ फॉर्मल मीटिंग, उसके बाद जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मीटिंग की प्लान करेंगे और स्केड्यूल करेंगे कब उनसे मिलना है। अब इस कस्टमर रिक्वेस्ट के बारे में जो हमने रिव्यू की, जो हमें उसने ऑर्डर दिया है सॉफ्टवेयर का। कंडक्ट रिसर्च टू स्पेसिफाई द प्रपोज्ड सॉल्यूशन एंड एग्जिस्टिंग अप्रोचेस, फिर हम रिसर्च करेंगे कि इसके सॉल्यूशन कौन कौन से हो सकते हैं, किस किस तरह से इस रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड किया जा सकता है। प्रिपेयर अ वर्किंग डॉक्यूमेंट एंड एन एजेंडा फॉर फॉर्मल मीटिंग, फिर उस मीटिंग के लिए आप एक पूरा वर्किंग डॉक्यूमेंट बना रहे हैं जिसमें एजेंडा लिखे कि आपने इस मीटिंग में क्या क्या तय करना है, क्या क्या डिस्कशन करनी है, किन किन बातों के जवाब चाहिए, किन किन कॉन्फ्लिक्ट्स की रिजोल्यूशन चाहिए। देन कंडक्ट द मीटिंग, फिर मीटिंग कंडक्ट की जाए। फिर उसमें क्या किया जाए, जॉइंटली डेवलप मिनी स्पेसिफिकेशन दैट रिफ्लेक्ट डेटा फंक्शन रिलेटेड फीचर ऑफ द सॉफ्टवेयर, फिर मिलके एक मिनी स्पेसिफिकेशन बना ली जाए जिसमें बता दिया जाए कि सॉफ्टवेयर में कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए और किस किस तरह चलने चाहिए। रिव्यू, उसके बाद फिर दोबारा रिव्यू किया जाए उन मिनी स्पेसिफिकेशंस को करेक्टनेस के लिए, क्या वो करेक्ट हैं जो हमने शॉर्टलिस्ट किए, क्या वो कंसिस्टेंट हैं और क्या उनमें कोई एम्बिग्यूटी तो नहीं रह गई,
वो बम तो नहीं रहेगा, क्लियर है बिल्कुल। फिर उन्हें असेंबल कर लिया जाए स्कोपिंग डॉक्यूमेंट के अंदर, उन्हें लिख लिया जाए और फिर स्कोपिंग डॉक्यूमेंट को रिव्यू किया जाए ऑल कंसर्न्स के साथ कि अब देखिए अब हमने ये फाइनल किया है स्कोपिंग डॉक्यूमेंट, आपके सॉफ्टवेयर में ये चीजें होंगी। देन मॉडिफाई द स्कोपिंग डॉक्यूमेंट और यूज केसेस आर रिक्वायर्ड। फिर जैसे ही यूजर ने यूज किया सॉफ्टवेयर को, चेंजेस न्यू आई, तो फिर आप स्कोपिंग डॉक्यूमेंट को मॉडिफाई करें। देखिए कितनी सारी डिफरेंट टास्क हैं communication activity में when we apply it over a large or complex project in the section of process decomposition. Then another P, that is the project, last P of the management spectrum. In order to manage a successful software product, you have to understand what can go wrong and so that the problems can be avoided. आपको समझना है प्रोजेक्ट में क्या क्या मसाइल आ सकते हैं और फिर समझना है कि कैसे उन्हें अवॉइड किया जाए। 10 signs that indicate that an information system project is in danger. अच्छा कौन कौन सी साइंस हैं, निशानियां हैं, वो 10 हैं जिनसे हमें लगता है कि अब प्रोजेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, डेंजर, इट इज ऑन एट रिस्क। पहली क्या है, सॉफ्टवेयर पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड देयर कस्टमर्स नीड। अगर सॉफ्टवेयर के लोग जो हैं जिन्हें सॉफ्टवेयर डेवलप करना है वो कस्टमर की नीड को नहीं समझ पाए तो प्रॉब्लम आ सकती है। The product scope is poorly defined. प्रोडक्ट का जो स्कोप है, क्या क्या उसमें फंक्शंस होने चाहिए, वो अच्छे से डिफाइंड नहीं है, एम्बिगुअस है। चेंजेस आर मैनेज्ड प्रॉपर्ली, चेंजेस को सॉरी पोअरली, जो चेंजेस आई हैं उन्हें पोअरली मैनेज किया गया है। The chosen technology changes, जो जिस टेक्नोलॉजी पे हम काम कर रहे हैं वो चेंज हो गई तो हमारा सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम में, डेंजर में। बिजनेस नीड्स चेंज, उस ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए हम काम कर रहे हैं उनका बिजनेस चेंज हो गया, उनकी रिक्वायरमेंट चेंज हो गई, हमारा सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम में आ जाए। डेडलाइंस आर अनरियलिस्टिक, कहा गया कि 15 दिन में बना कर दो, लेकिन इन रियलिटी 15 दिन में हो ही नहीं सकता, सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम में। यूजर्स आर रेजिस्टेंट, यूजर्स बात समझने को तैयार नहीं है, वो कह रहे नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ही होना चाहिए, जो हो ही नहीं सकता, प्रॉब्लम। स्पॉन्सरशिप इज लॉस्ट, और नेवर, यानी जहाँ से पैसा मिल रहा था रिसोर्सेज के लिए, सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए, वो रास्ता बंद हो गया, पैसे खत्म हो गए। प्रोजेक्ट टीम लैक्स पीपल विद एप्रोप्रिएट स्किल, टीम में रेलेवेंट स्किल्स के लोग नहीं, प्रॉब्लम में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्रॉब्लम में। मैनेजर्स या प्रैक्टिशनर्स डेवलपर अवॉइड बेस्ट प्रैक्टिस एंड लेसन्स लर्न, बेस्ट प्रैक्टिसेस को, काम करने के जो बेस्ट तरीके हैं उन्हें फॉलो नहीं कर रहे अगर हमारे मैनेजर्स या प्रैक्टिशनर्स हमारा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। तो इन 10 साइंस को जिनसे प्रॉब्लम आ सकती है, अवॉइड करने के लिए हमारे मैनेजर को क्या करना चाहिए? स्टार्ट ऑन द राइट फुट। नंबर 1, पहला स्टेप, बाय वर्किंग हार्ड टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम दैट इज टू बी सॉल्व। बहुत मेहनत की जाए प्रॉब्लम को समझने के लिए जो सॉल्व होनी है, एंड देन सेटिंग रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव, हकीकत पसंदाना मकासद सेट करें, एंड एक्सपेक्टेशन फॉर एवरीवन, और ऐसी ख्वाब ना दिखा दे, सुनहरे बाग ना दिखा दे कस्टमर्स को या अपने मैनेजमेंट को जो मुमकिन नहीं है। ठीक है, फिर मेंटेन मोमेंटम, एक मोमेंटम मेंटेन करें। मेनी प्रोजेक्ट गेट ऑफ टू गुड, शुरू में बहुत अच्छी तरह से स्टार्ट होते हैं कुछ प्रोजेक्ट, आगे चल के ऐसे ऐसा स्लो हो जाते हैं, ऐसा ना करें। शुरू में वो स्पीड रखी जाए जो मेंटेन की जा सके। ठीक है, to maintain momentum, project manager must provide incentives to keep turnover, यानी अपने टीम मेंबर्स को आप बेनिफिट्स दें ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता डाउन ना होते जाए, वो अपनी परफॉर्मेंस थ्रू आउट द प्रोजेक्ट वही रखे जो उन्होंने स्टार्ट में रखी है। ठीक है, फिर ट्रैक द प्रोग्रेस, टाइमली आप देखते रहें कि हमारी जो प्रोग्रेस हो रही है एज पर स्केड्यूल, एज पर डेडलाइन चल रही है या नहीं चल रही। जहां आपको लगे कि हम पीछे जा रहे हैं तो आप कंटिन्यूसली प्लान आपका रेडी हो कि अब हमें क्या करना है, इसको स्पीड को बढ़ाना है। ठीक है, देन मेक स्मार्ट डिसीजंस, कीप इट सिंपल,
डिसाइड टू यूज एक्सिस्टिंग सॉफ्टवेयर कंपोनेंट स्टैंडर्ड प्रोसेस, जो मौजूद उस वक्त मौजूद अवेलेबल सॉफ्टवेयर के स्टैंडर्ड्स हैं उन्हें अब यूज किया जाए। स्मार्ट रहें अपने मूव में, चेंज हो सके आप, आइडेंटिफाई अवॉइड ऑब्वियस रिस्क, allocate more time than you think is needed to complex or risky tasks. फिर they conduct a post-mortem analysis, establish a consistent mechanism for extracting lessons learned for each project. तो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तो आप एक मैकेनिज्म अडॉप्ट करें जिसको आप थ्रू आउट, जिससे आप पढ़ें उस प्रोजेक्ट को और सीखें कि इसमें क्या क्या अच्छा रहा, क्या क्या एवरेज रहा, क्या क्या आपने आइंदा अवॉइड करना है। पोस्टमार्टम करें एनालिसिस, ठीक है। फिर आता है हमारा मैनेजमेंट स्पेक्ट्रम में एक प्रिंसिपल जिसे W5HH कहा जाता है, यानी नीड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल दैट स्केल्स डाउन टू प्रोवाइड सिंपल प्लान फॉर सिंपल प्रोजेक्ट। इसमें होते क्या है, हमारे 5W है और 2H है इस प्रिंसिपल में। W कौन से हैं? वाई, पहला वाई, वाई द सिस्टम बीइंग डेवलप्ड, सिस्टम क्यों बनाने जा रहे हैं, नीड क्या है इसे बनाने की, स्टेक होल्डर्स चाहता क्या है, ठीक है, पहला वाई, इसका जवाब होना चाहिए आपके पास। दूसरा W है व्हाट, अब करना क्या चाहिए, व्हाट विल बी डन, होगा क्या उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जो स्टेक होल्डर है वाई में हमें बताइए। थर्ड W है व्हेन, कब तक ये हमने कंप्लीट करके देना है, कितना टाइम हमें लगेगा। थर्ड W है हु, कौन बनाएगा इस फंक्शन को, रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करना कि किस किस ने क्या क्या काम करना है इसे डिलीवर करने के लिए। फिफ्थ W है वेयर, वेयर आर द लोकेटेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी नॉट ऑल रिसाइड विद इन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, यानी ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास सारे वो लोग जिन्होंने ये बनाना है, हु में आपने तय किया, ऐसा भी हो सकता है वो आपके पास अवेलेबल ना हो, उन स्किल्स के लोग आपके पास अवेलेबल ना हो, तो आप उन्हें अवेलेबल करें। ये 5 W हो गए। फिर 2H है हमारे पास इस प्रिंसिपल में। फर्स्ट वन इज हाउ विल द जॉब बी डन टेक्निकली एंड मैनेजमेंट, इसमें पूरा प्लान हम बनाते हैं कि टेक्निकली और मैनेजमेंट लेवल पर किस तरह से हम इस जॉब को डन करेंगे, प्रोजेक्ट स्कोप किस तरह एस्टेब्लिश होगा, मैनेजमेंट और टेक्निकल स्ट्रेटजी बनाते हैं फॉर द प्रोजेक्ट दैट मस्ट बी डिफाइंड। सेकंड H हमारा हाउ मच ऑफ ईच रिसोर्स नीडेड, फिर हमें क्या क्या चाहिए इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, कितने सिस्टम चाहिए, कितने लोग चाहिए, कौन सी स्किल्स। सो द आंसर इज दिस क्वेश्चन इज डिराइव्ड बाय डेवलपिंग एस्टिमेट्स बेस्ड ऑन आंसर टू अर्लियर क्वेश्चंस। जब इससे पहले वाले जो 5W और 1H के जो आंसर्स थे उन्हीं की बेस पर फिर हम इस H जो हाउ मच वाला H है इसका जवाब भी डिराइव करेंगे। ये W5-2H प्रिंसिपल से जिसकी बेस पर हम अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, मैनेजमेंट स्पेक्ट्रम का ही पार्ट है। यहाँ आपका मैनेजिंग सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का टॉपिक कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। समझ में ना आया हो, you can refer the book I have recommended. I have provided that book to you in the PDF form. So see you in the next lecture. Till then,